Okay, so dear students, today's topic is ionic radii and its variations along the period and down the group in periodic table. So first of all, we must know what is ionic radius. The ionic radii corresponds to the radii of ions in ionic solids, ionic crystals. Ions in turns are formed when neutral atom lose or gain electrons. So depending upon loss and gain of electrons, there are two types of ionic radii. So the topic is ionic ionic radius. Ionic radius. So what is the definition of the ionic radius? And then we will go for the cations and anions. It is defined as the effective distance from the center of the nucleus of the ion up to which it has its influence on the electronic cloud. So as I told you, ionic radius can be categorized into two types. And the first one is, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैटाइंस क्या है. So कैटाइन क्या है? It is formed by the loss of one or more electrons from the outermost valence shell. And what is anion? सॉरी. सो कैटायन के केस में और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं. इट इज़ positively charged. So what is anion now? It is formed by the gain of one or more electrons in the outermost valence shell, and it is negatively charged. It's of negative charge. So first of all, I would like to take an example of cation. So you know that this is lithium, and in case of lithium we have the electronic configuration 2 1, means in first shell अगर configuration लिखना हो तो it is 1s2 2s1. तो in first shell we have 2 electrons and second shell we have only 1 electron. So after the loss of 1 electron, if lithium loses 1 electron, we will get only 2 electrons, and the configuration will be 1s2 only, because 2s now is vacant. So in case of lithium, there is loss of one shell.
So let this was the first shell and this was the second shell, and in the center we have nucleus. Let this is the nucleus. So this is the structure for lithium atom. In the first shell, how many electrons we have? We have 2 electrons. In the second shell, we have 1 electron. So effective distance is measured from the center of nucleus to the outermost shell where electrons are present. So this is the case of lithium. But in case we have to go for lithium positive, then there is a removal of वैलेंस शेल. सेकेंड वाली जो है वैलेंस शेल वो रिमूव हो जाएगी. सो वी विल हैव देन नाउ ओनली वन शेल. सो इन दिस केस आई विल प्लॉट, आई विल शो the valence shell. This is the case. Now the effective distance is from the center of the nucleus to the first shell only. So this is for lithium positive and this is for lithium. So clearly we can show that the size of anion, now this is anion, cation, this is cation. The size of cation is always, the size of cation is always smaller than its parent atom. Its parent atom means lithium positive has smaller size than lithium. Similarly, we can write more examples. Na positive has smaller size than Na, and H positive has smaller size than H. I positive has smaller size than I. So these are the different examples. And what is the cause of this smaller size? What is the cause of this smaller size? So here is the explanation. So what is the explanation? So as told earlier, a cation is formed. A cation is formed by the loss of one or more electrons from the valence shell. So there is complete removal of the shell, and distance from the center of nucleus up to the shell where probability of finding the electron is maximum decreases. So distance जो है वो डिक्रीज कर देगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. सो ये फर्स्ट रीज़न था इसका. सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न है, in case of lithium there is 3 positive nuclear charge because there are 3 protons और बाहर इनिशियल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3 इलेक्ट्रॉन्स थे. बट जब लिथियम कैटायन बनता है, Li पॉजिटिव बनता है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज तो 3 ही रहेगा, बट बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? अब 2 इलेक्ट्रॉन्स. जो पहले न्यूक्लियर चार्ज 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा था, अब वही न्यूक्लियर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है. तो मीन्स पर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा. तो सेकंड रीजन इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, the effective nuclear charge per electron increases. As a result,
As a result, the electrons are pulled more strongly towards the nucleus. Hence size decreases. So these are the two important reasons कि why the size of cation is smaller than size of anion. So अब जो नेक्स्ट केस है वो मैं अब बात करने जा रहा हूँ एनायन के बारे में. सो एनायन हैज़ टोल्ड यू अर्लियर, एनायन क्या है, इज़ फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है, वाई the size of anion is always greater than its parent atom. So cation का साइज क्या था, it is always smaller than its parent atom. The size of cation is always smaller than its parent atom. But the size of anion is always greater than its parent atom. जिस एटम से वो बना है उसे हमेशा साइज बड़ा होगा. तो इसका रीज़न क्या है, नाउ दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. सो जस्ट मेक मी, हाँ जी. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. Now I am citing an example. I have written here fluorine. So what is the atomic number of fluorine? Atomic number of fluorine is 9. ठीक है, और कन्फिगरेशन इसका बनता है 2 7, मीन्स इट्स वैलेंस शेल हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स. कन्फिगरेशन अगर लिखना हो 1s2 2s2 2p5, सो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और when it will gain 1 electron we will get F negative. now the subshell is fully filled. ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी जो सबशेल है वो फुली फिल्ड स्टेबल कन्फिगरेशन बना लिया है. 1s2 2s2 2p6, so there are 8 electrons. Now what happens, अगेन मैं डायग्रामेटिकली आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि why the size is greater than the parent atom in case of anions. So see carefully. Okay, so I am just plotting the outermost shell. बाकी कोई शेल प्लॉट नहीं करूँगा, सिर्फ outermost shell में प्लॉट करूँगा. and then I will paste a nucleus here. Only outermost shell I am showing here. So this is the nucleus and I have shown the outermost shell. Okay, so initially how many electrons we have in the outermost shell? 7 electrons. Nuclear charge is clear, you know, there are 9 protons. ठीक है, in the nucleus. So initially how many electrons we have? We have 7 electrons in the outermost valence shell. So this is the first electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth electron, sixth electron और seventh electron. तो these are the 7 electrons. ठीक है, ये जो डॉट है, what this dot is representing? This dot is representing electrons. ठीक है, तो ये electrons के बारे में है. This dot is electron. ठीक है, so now what happens, when there is gain of 1 electron, because anion is formed by gain of electron, then what happens? So ये है F negative के लिए. So when electron is gained, now how many electrons are there in the valence shell? There are now 8 electrons.
देयर आर नाउ 8 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो पहले क्या थे यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, देयर वर 2s2 2p5, अब क्या हो गया 2s2 2p6। बट अंदर न्यूक्लियर चार्ज क्या है, दैट इज सेम, और वो कितना है, वो है +9। न्यूक्लियर चार्ज में चेंज नहीं आई, बट बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, बढ़ गए। याद रखना यहाँ पे शेल इंक्रीज नहीं करती है, नो न्यू शेल इज एडेड, कि आप बोलो एनाइन का साइज बढ़ जाएगा बिकॉज न्यू शेल इज एडेड, क्योंकि कैटायन में हमने पढ़ा था शेल खत्म हो जाती है, तो यहाँ शेल नहीं नई ऐड हो रही है, बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, बाहर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। तो अगर बाहर बढ़ रहा है तो अब पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सो इसी की एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू राइट नाउ। द साइज ऑफ एनाइन the size of anion is always smaller than its parent, oh sorry, is larger than its parent atom. So इसकी explanation क्या है, there is only one explanation. So what is the explanation of this point? An anion is formed by the gain of one or more electrons in the valence shell. As a result, nuclear charge per electron decreases. Nuclear charge means positive charge per electron decreases, and outermost electrons are pulled weakly towards the nucleus. So because attractions now they are weakened, तो size increase कर जाएगा. So और भी examples हैं, other examples are there, and but they can be Cl negative has greater size than Cl, F negative has greater size than F, I negative has greater size than I. तो अगर सभी का कंक्लूड करके लिखना हो तो जैसे हम ये लिख दें, I पॉजिटिव सबसे छोटे साइज़ का, I उससे बड़े साइज़ का, I पॉजिटिव नेगेटिव सबसे बड़े साइज़ का. एंड वन मोर एग्जाम्पल वी कैन साइट, H नेगेटिव इज लार्जेस्ट, सॉरी चलो पॉजिटिव कर देता हूँ, H पॉजिटिव इज स्मॉलेस्ट देन H, and H is smaller than H negative. So in this way you are asked the questions in the final exams. आपसे पूछा जाता है कि किस तरह से आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे. सो कैटायन का साइज़ हमेशा अपने पेरेंट एटम से होगा छोटा, ठीक है. दो रीज़न बताए क्यों, एक तो शेल कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है, ठीक है, और दूसरा आपको पॉइंट बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा बिकॉज बाहर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं. और एनायन का साइज़ क्या है, इट इज़ ऑलवेज, anion is always greater than in size than its parent atom. और उसका रीज़न क्या है, बिकॉज anion is formed by the gain of one or more electrons in the valence shell, ठीक है. and as a result of that what happens, the nuclear charge per electron decreases, or the outermost electrons are weakly attracted toward the न्यूक्लियस. सो फोर्स वीक हो जाएगी, अगर फोर्स वीक होगी तो ऑब्वियस ही बात है न्यूक्लियर चार्ज जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा एनाइन का अपने पेरेंट एटम से. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज, पहले पढ़ा आपने, व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज.
व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में. सो दोज molecules, ions या atoms which have same number of electrons are called isoelectronic species, are called isoelectronic species जिनमें same number of electrons हो. So I will go for few examples. So कौन सी examples होंगी? What are the examples? So you have H, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक हैं. हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो हैं. बट अगर पॉजिटिव कर दिया तो एक कम हो गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया. लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट अगर टू पॉजिटिव कर दिया जाए तो दो निकल जाएंगे. इट विल आल्सो हैव वन इलेक्ट्रॉन ओनली. बेरिलियम में फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट अगर इसको थ्री पॉजिटिव बना दिया जाए तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. सो दिस ऑल आर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. दिस ऑल आर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. कुछ और लिखूंगा मैं यहाँ पे अब. सो आई रोट नियोन. नियोन में है 10 इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम में है 11, बट वन पॉजिटिव कर दिया जाए तो 10 रह गए, एक निकल गया. ठीक है. मैग्नीशियम में है 12 इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर टू पॉजिटिव कर दिया जाए तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए. एल्यूमिनियम में भी है 13 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर 3 पॉजिटिव कर दिया जाए तो इसमें भी 10 रह गए. तो दिस ऑल आर आल्सो, ये सारी की सारी कौन सी हैं? 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. इन्हीं में मैं कुछ और ऐड करूँगा. फ्लोरीन है 9 इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर एक गेन कर ले मीन्स ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ऑक्सीजन में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 2 गेन कर ले तो इट विल आल्सो बी अ 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. इन केस ऑफ नाइट्रोजन वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इफ इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इट इज अगेन एक्वायर द स्टेबल कन्फिगरेशन. तो इन सभी का, जितने भी ये स्पीशीज लिखी हुई इन सभी का कन्फिगरेशन फिक्स्ड है, वो है 2s2 2p6 स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन इन सभी स्पीशीज का. आई कैन साइट मोर एग्जाम्पल्स. सो वो होंगी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो आई रोट आर्गन. आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. पोटेशियम में 19 है, तो अब कितने रह गए? 18, बिकॉज देयर इज वन पॉजिटिव मीन्स लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. कैल्शियम हैज़ 20 इलेक्ट्रॉन्स, बट नाउ वी if we wrote 2 positive then it will lose 2 electron, so it is also 18 electron species. Chlorine 17, 18, 16, 18, phosphorus 15, 3 गेन किए 18. तो दिस ऑल आर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और इनका भी कन्फिगरेशन फिक्स्ड है. इट इज़ 3s2 3p6 स्टेबल कन्फिगरेशन वाली स्पीशीज हैं ये सारी के सारे. ओके. सो ये मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की एग्जाम्पल्स लिख दी हैं. ओके. अब जो इम्पोर्टेंट आपको पूछा जाता है, वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक और आयनिक इकट्ठे ही है. रेडियाई फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में वेरिएशंस कैसे होती हैं, किसका साइज छोटा होगा, किसका साइज बड़ा होगा, इन स्पाइट दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट. और यहाँ ऊपर एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं. मैं पहली एग्जांपल को फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे. आई रोट He पॉजिटिव, लिथियम 3 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव, and beryllium 3 positive, lithium 2 positive and beryllium 3 positive. So you can see here, यहाँ प्रोटॉन 1, यहाँ प्रोटॉन 2, यहाँ प्रोटॉन 3, यहाँ प्रोटॉन 4, बट इलेक्ट्रॉन सभी में एक एक. तो ओबियसली यहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बेरिलियम के केस में. ठीक है. सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा. तो यहाँ पे कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम? ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज
ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज को आप कैसे कॉर्लेट कर सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो किस चार्ज के हैं, पॉजिटिव चार्ज के हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on the outermost valence shell electron। तो अगर फोर्स स्ट्रांग होगी तो साइज छोटा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 4 पॉजिटिव है, अंदर 4 पॉजिटिव पड़ा हुआ और बाहर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इस केस में अंदर कितना है, 3 पॉजिटिव है, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली 4 पॉजिटिव वाला सबसे स्ट्रांगली खींचेगा, तो साइज सबसे छोटा इनका होगा। ठीक है, सो ये था आपके पास। सो अब दूसरी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, इन केस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आई एम राइटिंग अगेन, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऊपर, चलो अलग से लिख देते हैं। आई हैव F नेगेटिव, नियोन, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, हियर आई हैव ऑक्साइड एंड N3 नेगेटिव। यह एटॉमिक नंबर है 7, मीन 7 प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन्स, 9 प्रोटॉन्स, 10 प्रोटॉन्स, 11, 12, 13। ठीक है, और ये सारी की सारी कौन सी थी, दे ऑल आर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे इन केस ऑफ एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन सब सॉरी दे आर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, नॉट 18, दे आर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम बाहरी इलेक्ट्रॉन 10 ही हैं, यहाँ भी बाहरी इलेक्ट्रॉन 10 ही हैं, बट पॉजिटिव चार्ज अंदर न्यूक्लियस में कितना है, 7। तो ओबवियस सी बात है 7 प्रोटॉन जो हैं वो कम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स को। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस केस में क्या है, वी हैव 7 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इस केस में क्या है, एल्यूमिनियम के केस में अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में और बाहर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ओबियस ही बात है कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, यहाँ 13 10 को ज़्यादा खींचेंगे या 7 10 को ज़्यादा खींचेंगे, ओबियसली 13 10 को ज़्यादा खींचेंगे, तो इनका साइज़ छोटा, यहाँ 12 10 को खींच रहे हैं, यहाँ 11 10 को खींच रहे हैं, एंड सो ऑन। सो जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं वो क्या है, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं वो क्या है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज़ छोटा होगा। ठीक है, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, greater the positive charge, smaller is the size, and greater the negative charge, larger is the size। कब, among iso electronic species, among iso electronic species। सो लास्ट जो एग्जांपल है, अगर उसका ऑर्डर हमें मेंशन करना पड़े तो दैट ऑर्डर विल बी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के केस में व्हाट कैन बी दैट ऑर्डर, आर्गन है, वी हैव K पॉजिटिव, वी हैव Ca2 पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली Ca2 पॉजिटिव स्मॉलर साइज, यहाँ पे 18, यहाँ 19, यहाँ 20। तो इन केस ऑफ Cl नेगेटिव है, इसका साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि ओनली वी हैव 17 प्रोटॉन्स। देन वी हैव सल्फर, सल्फाइड बन गया, तो यहाँ पे 16 है। ये सारे के सारे स्पीशीज दे ऑल आर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ओके, और इससे भी बाहर यहाँ पे आ जाएगा और बड़े साइज़ का फास्फोरस। ठीक है, फॉस्फाइड, दिस इज कॉल्ड फॉस्फाइडाइन। सो दिस वाज द केस जो आपको मैंने आज टॉपिक करवाना था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल आपको भेज दिया जाएगा।